Hello, dear students. I am Dr. Sarang Dote. Welcome to the our online classes. Today we are going to discuss the unit number 5, that is elementary quantum mechanics. So this is the elementary quantum mechanics. So what is the meaning of quantum mechanics? What is the applications of quantum mechanics? We are going to discuss here. So one by one we start with the topic. The first is the introduction of this quantum mechanics. So what is the meaning of a quantum? Let's see. First of all, there is a word quantum. This quantum is meaning of the packets of energy. This is the meaning of packets of what? Energy. अगर सपोज मेरे पास ऐसे छोटे छोटे एनर्जी है, ठीक है, इस टाइप से अगर एनर्जी है, इन सब का अगर मैं एक पैकेट बना लेता हूँ तो इसको बोलता हूँ मैं क्वांटम. दिस इज द क्वांटम. सो क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ मोशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स लाइक एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन. इसकी स्टडी जो होती है इट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रल बिहेवियर एंड इवन द reactions can be interpreted in terms of a motion of micro particles. ये जो थी सबसे पहले, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स. देयर आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस इन द क्वांटम मैकेनिक्स. किस टाइप से होता था? तो सबसे पहले जो क्वांटम मैकेनिक्स आई था उस थ्योरी का नाम था क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स. दिस क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स, दिस टर्म is coined by the Maxwell. This term is coined by what? Maxwell. Maxwell सर जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिकल मैकेनिक्स ये टर्म कॉइन की थी. फिर इस क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए, लिमिटेशंस आ गए, तो सो दैट ये थ्योरी डिस्कार्ड होकर एक नई थ्योरी आई है जिसको बोला जाता है दैट इज़ मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, क्वांटम mechanics. Now this classical theory which is coined by the Maxwell, there are some limitations. Which type of limitations are there we are going to discuss here. The classical mechanics, first it did not give the a proper explanation regarding the black body radiations. What is the meaning of a black body radiations? इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स ने नहीं दिया है. नेक्स्ट लिमिटेशन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. व्हाई देयर इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज देयर? दिस इज आल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय दिस क्लासिकल मैकेनिक्स. थर्ड इज द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा. एटॉमिक एंड molecular spectra. This is also not explained by this classical mechanics. And the last one is heat capacities of a solid. This is not explained by the classical mechanics, and hence this theory is not accepted. So that a new theory is come up which is known as the quantum mechanics. So for the development of quantum mechanics, there is bigger contributions of Heisenberg, de Broglie, Planck and Einstein. How they are contribute to develop this mechanics we will see here one by one. But before that we start with what is the Planck quantum theory. This is the quantum mechanics. The first is the Planck quantum theory. In 1900, in 1900 Max Planck studied the spectral line obtained from the radiations emitted by the hot black body at a different temperature and put forward the theory known as Planck's quantum theory of radiations. Okay, Planck's
क्वांटम थ्योरी ऑफ व्हाट, रेडिएशंस। अभी यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है, ये बार बार वर्ड जो आ रहा है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइन, इफ़ यू सी इन दिस स्लाइड, तो यहाँ पर देखो एक मैंने आपको कलर बैंड दिखाए हैं जहाँ पर वेरियस कलर्स अरेंज किए हुए हैं। जैसे ये यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लू कलर, यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रीन कलर, यहाँ पर आपको रेड कलर दिखेगा। सो दिस इज़ द कलर स्पेक्ट्रा। यहाँ पर कलर स्पेक्ट्रा क्यों मिलता है ये एक्सप्लेन नहीं किया था क्लासिकल मैकेनिक्स ने, बट प्लंक्स क्वांटम थ्योरी is explain why there is a such type of spectral is there. So for that they are using the black body radiation experiment. They used they used the black body radiation experiment. How? See, the hot body emits the radiant energy not continuously but discontinuously and discretely. Okay. In the other words, the hot body emits the radiated energy not as the continuous wave but the small packet or bundles of discrete units of the wave. Each of these units is called quantum, which can exist independently. Okay, let's see. We will take one example. Let's see. Suppose this is a black body. Here I am taking the two examples. And B, both are heated at the higher temperature. ओके, हीट किया है मैंने, दोनों को भी हीट किया। हीट करने के बाद दोनों के दोनों भी जो है वो एनर्जी इमिट्स करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, तो यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर ए जो है वो एनर्जी जो इमिट करेगा वो इमिट करेगा कंटिन्यूसली, इस टाइप से कंटिन्यूसली वो इमिट करते रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू प्लंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में इमिट होंगी इस टाइप से। इस टाइप से इमिट्स होंगी। ये जो है ए, इसको बोला जाता है एनर्जी पैकेट्स। दिस इज नथिंग बट द क्वांटम। दिस इज नथिंग बट द क्वांटम। सो ये जो होता है स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स और डिस्क्रीट यूनिट्स इज नोन एज व्हाट, क्वांटम्स। नाउ अभी मैथमेटिकल डेरिवेशंस भी देख लेते हैं इसका, किस टाइप से होता है प्लंक्स क्वांटम थ्योरी का। तो चलो देखो, यहाँ पर एनर्जी जो रहेगी एसोसिएटेड विद द ईच क्वांटम और फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस। दैट मीन्स एनर्जी रिगार्डिंग दिस जो ईच फोटोन ईच क्वांटम इज रिलेटेड टू द व्हाट, द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करेंगे अपन? म्यू से डिनोट करेंगे। सो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। नाउ to remove this proportionality sign, here we are using the one constant, so E is equals to h mu. This h is known as the Planck constant. H is known as what? Planck constant, and इसकी वैल्यू जो होती है 6.62 into 10 raised to power minus 34 joule second. Okay, this is the unit of what, Planck's quantum, and वैल्यू कितनी होती है 6.626 into 10 raised to power minus 34, and mu is equals to what, frequency. now अपने पास एक रिलेशन होता है, frequency is equals to what, c by lambda, wavelength, velocity divided by wavelength होता है। so velocity of light and radiations, so that here we can put instead of mu we can write it E is equals to h c by lambda, ऐसा लिख सकते हैं अपन। okay, the energy emitted or absorbed by the body can either equal to the one quantum of the energy, that is h mu, or any whole number multiply of it। इसका क्या मीनिंग होता है? जो भी एनर्जी इमिट होगी, जो भी एनर्जी ब्लैक बॉडी से इमिट होगी
वो जो या फिर एब्जॉर्ब होगी इक्वल रहेगी वन क्वांटम ऑफ एनर्जी। वो इक्वल क्या रहेगी? वन क्वांटम ऑफ व्हाट? एनर्जी। वन क्वांटम ऑफ एनर्जी मीन्स व्हाट? एच म्यू। दिस इज अ वन क्वांटम, दिस इज द वन क्वांटम। इसलिए एनर्जी जो होगी इज इक्वल्स टू n इंटू एच म्यू। सो वेयर एज n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 लाइक दैट। इस टाइप से होगा वो 1, 2 लाइक दैट। Thus the energy emitted or absorbed by the body can equal to 2h mu, 3h mu, but never equal to the fractional value like the 1.2, 2.7 इस टाइप से नहीं होगा। Thus the energy emitted or absorbed is quantized and thus is called द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स आप जो एनर्जी जो यहाँ से इमिट कर रहे हो आप उसको क्वांटाइज कर रहे हो। दैट मीन्स 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा इस टाइप से। एंड दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ व्हाट? एनर्जी। नाउ ये जो थी ये थी प्लंक्स क्वांटम थ्योरी, दैट इज अ क्वांटम मैकेनिक्स। अभी इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? बाय यूजिंग दिस प्लंक्स क्वांटम थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, okay, to develop the Bohr's atomic model, explain the Crompton effect, that is a scattering of what? X-rays, scattering of what? X-rays। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो था ये सब कुछ दैट इज़ अ बेसिक चीज़ें थी। ओके, ये कैसा थे? बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझ में आई होगी। सो यहीं पे रुकते हैं, बाकी का क्लास नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। ओके, थैंक यू।